Okay, so as we were talking about the report writing, so there is a very important concept in report writing. Whenever we write dissertation or we write thesis, we write research papers. So ethical aspect is very important. So when we talk about ethicality, uh, one of the main things is that whatever you are writing in your report or a paper or your dissertation or thesis, it is important to cite the sources. You cannot write the statements and claim it as your own. So citation and giving references is very important. I'll just show you how and what kind of exam question you can get in the exam related to this. So there are different kinds of citations, or the references styles are different that are followed in different disciplines. If I talk about social sciences, so majorly the APA style is followed. APA 7th edition is going on. If I talk about uh, English literature papers, MLA style is followed. So there are different styles of citations, and there are different tools of putting that citations and references also. But as of now, we will do the simple things. So what you have to do, you should basically know about how to find relevant research for your topic. Okay, this I have done multiple times, but I'm showing you one more time how you are going to find out the relevant papers related to your study. See, there are different databases which we can use. We can say it's Google Scholar is one of them. Google Scholar is the free database, and there is Scopus, there is Web of Science, there is EBSCOhost. There are different data, PubMed. So every discipline has PubMed is basically used for science, medical, and all. So we have different databases. हम जो use करेंगे वो probably Scholar use करेंगे, बिकॉज स्कॉलर इज अ फ्री डेटाबेस. स्कोपस वगैरह के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है. वेब ऑफ साइंस, एब्सकोहोस्ट, all these databases require subscription. So I am simply going to Google Scholar. You all know what is your topic, right? So for example, my topic is neuromarketing. Okay, so how I'm going to find out the literature? I'm not going too much detail into too much detail of Boolean algebra, which we have already done, and or inverted commas, ये सब कैसे लगाते हैं. So I'm simply uh, telling you that I will be finding out few papers on my topic. For example, I want neuromarketing, um and कंज्यूमर बिहेवियर. जो भी आपका टॉपिक होगा, दिस न्यूरो मार्केटिंग आई हैव पुट इट इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स सो दैट दिस टर्म ओनली, बिकॉज कहीं कहीं बीच में गैप होगा या कुछ और लिखा होगा. सो इफ आई एम पुटिंग इट इन ब्रैक इन inverted commas, it will search, the algorithm will work in such a way that it will search this exact word only. Okay. And if I am writing and capital, that means wherever the neuromarketing and consumer behavior will come, only those searches it will give me only those papers. Okay. In case I write neuromarketing, or now it is going to give me neuromarketing, जहाँ पे पेपर्स में या न्यूरो मार्केटिंग होगा या कंज्यूमर बिहेवियर होगा, वो वाले पेपर्स देगा. और we have synonyms also, right? So for example, neuro marketing is also called, sometimes it is called consumer neuro consumer neuroscience. So now it will show me the papers
where either neuromarketing will be written or consumer neuroscience will be written. And if I wanted to club it with the consumer behavior, it will give me consumer behavior as well. So I hope you know this Boolean algebra and the difference between or and. So I just want the latest paper on neuromarketing. I'm erasing this consumer behavior. So मेरे को my topic is neuromarketing. I'm going to search on this. ठीक है. So now I have all relevant paper. But first paper, can you see it is from year 2008. Okay. It's too old, right? Consumer neuroscience. And if I want only neuromarketing, let's see. वो आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है आपने कितना उसको रिफाइन कर लिया ऑब्जेक्टिव को. ओके. सो न्यूरो मार्केटिंग. Okay, so simply I'm taking important papers on this. Now these papers are showing from 2010, 2007, and very old versions also. So I am putting a range of time and I'm putting it as since 2021. Okay. So now if I'm putting it since 2021, it is showing me the latest papers in my area. Can you see? 2023, 2023, 2025 even, 2023. So it is showing me the relevant papers. Now, अभी आप लोगों को ये नहीं पता है कि कौन से अच्छे पेपर्स हैं कौन से अच्छे नहीं हैं. सो वेन एवर यू सी लाइक यहाँ पे लिखा है वाइली इज अ वेरी गुड पब्लिशर. सेज भी बहुत अच्छा है. स्प्रिंजर भी बहुत अच्छा है. MDPI इज मिडिल लेवल. ओके. और कुछ कुछ पेपर्स बहुत अच्छे भी होते हैं इसके. सो विद टाइम यू विल गेट टू नो कि कौन से पब्लिशर्स अच्छे हैं कौन से नहीं है. सो दिस इज वन पार्ट दैट वी आर फाइंडिंग द रेलेवेंट लिटरेचर related to our topic. And there is one more thing. Here I am using the Safari operating software. But if you are using Windows, then there is one magical thing I would say. There is an extension of Chrome. I'll just show you. I'm opening Scholar first. Very few people know this, but this is very useful in case you go for further research. So I have opened Google Scholar in Chrome now, and the same search I am doing it on neuromarketing. Okay. वो रिफाइन कर सकते हैं हमारे पास कुछ वो होगा जो भी अगर मुझे कंज्यूमर बिहेवियर देखना है या एडवर्टाइजिंग देखना है आई विल डू अकॉर्डिंगली बट राइट नाउ आई एम नॉट टीचिंग यू दैट आई एम नॉट गोइंग इन टू दोज डिटेल्स आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कैन यू सी देर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड at the top, I mean in blue, this there is written X citation. X citation एक एक्सटेंशन है क्रोम का जिससे कि वो हमें पेपर्स के साथ साथ along with finding the relevant papers, it is telling us the quality of that paper as well. If you remember, I told you Scopus में there are four quartiles. Q1 क्वार्टाइल वन के पेपर बहुत अच्छे पब्लिशर्स के होते हैं बहुत अच्छे जर्नल्स के होते हैं. ठीक है. देन कम्स द Q2 थोड़ा उससे कम लेवल होता है. Q3 एंड Q4. सिमिलरली हमारे पास ABDC लिस्ट होती है. ठीक है. ABDC में हमारे पास ए स्टार कैटेगरी होती है. ए होती है. ठीक है. फिर उसके बाद बी होती है. सी होती है. सो हेयर क्योंकि ये एक्साइटेशन जो है और इसमें देखो इफ आई एम एट दिस वन आई एम एट दिस पेपर. सो अगर आप ये एक्साइटेशन डाउनलोड कर लेते हो फॉर प्रैक्टिकल यू डोंट दिस प्रैक्टिकल यू डोंट नीड इट प्रॉबेबली और इफ यू कैन डाउनलोड देर इज नो हार्म. कैन यू सी एस जे आर जो है वो हमारा स्कोपस का वो है. तो ये दिखा रहा है Q1. ये जिस जर्नल में है जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च ये Q1 का पेपर है क्वार्टाइल वन. इट्स अ वेरी गुड जर्नल दैट मीन्स.
और इसकी एबीएस रैंकिंग जो है वो 3 है, उसमें 1 2 3 होती है। एबीडीसी की रैंकिंग है उसकी ए, दैट इज द सेकेंड टॉप नॉच कैटेगरी इन एबीडीसी लिस्ट। सबसे ऊपर ए स्टार होती है, फिर ए होती है। सो अलोंग विद द पेपर्स इट इज शोइंग मी these rankings as well. If I'm clicking on, if I see this paper, defining neuromarketing practices and professional challenges, if I click here, it shows me कि ये क्वार्टाइल 2 का है, Q2 का पेपर है। एबीएस की इसकी जर्नल है, एबीएस हार्वर्ड रिव्यू ऑफ साइकेट्री। This journal is categorized is under quartile Q2 of Scopus. एबीएस की रैंकिंग इसकी नहीं है, एबीडीसी की रैंकिंग भी नहीं है। सो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा मिडिल लेवल का जर्नल है। ओके, सो दिस वाज वन थिंग आई वांटेड टू शो यू। एंड अब हम चलते हैं साइटेशन स्टाइल्स पे। फर्स्ट इज दैट यू हैव टू फाइंड द रेलेवेंट पेपर्स ऑफ योर एरिया। नाउ anything you can use. I mean, I've come back to the Safari. So for example, मैंने ये डाला था, और if I go to this, now the first paper, I'm taking this paper, 2018 का पेपर है ये, but it's a quartile 1 Q1 पेपर है, ठीक है, जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू साइट दिस पेपर, ठीक है, अगर आप नीचे देखोगे, सो यू गेट द different metrics about this paper. This is cited by 430 other researchers also. So इस जितना citations होता है that means उतना अच्छा है वो पेपर, राइट? क्योंकि जब कोई इस टॉपिक पे काम कर रहा है तो बार बार इन लोगों को साइट कर रहा है, ठीक है। इफ यू सी दिस पेपर, न्यूरो मार्केटिंग द न्यू साइंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, स्प्रिंजर का है, 2011 का है। बट अगर आप देखो तो इसकी साइटेशंस कितनी है, वन, ऊपर से सेकंड देख रहे हो, इट इज साइटेड बाय 1359 रिसर्चर्स इन, ठीक है। एंड देन यू कैन सी द रिलेटेड आर्टिकल्स ऑल्सो, उसी से रिलेटेड निकल आएंगे। ओके, सो मोर साइटेशंस मीन्स more popular the paper is, more and probably it qualifies as a good paper, right? Now how do I need to how will I cite it? यहाँ पे अगर आप ऑप्शन क्लिक करोगे साइट पे, so now look, there is an MLA style, APA style, Chicago style, Harvard style, Vancouver style. So ये रिक्वायरमेंट होती है जिस भी जर्नल में आप सबमिट करते हो, या हर यूनिवर्सिटी की भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इस फॉर्मेट में साइटेशन चाहिए। सो हम जनरली एपीए स्टाइल फॉलो करते हैं, ठीक है। सो आई एम कॉपिंग दिस एपीए स्टाइल, आई विल गो टू word file. This is how you are supposed to give references in the exam. So I am giving references of my, आप पेपर का नाम लिखोगे, and these references are in APA style. Okay. So अब देखो, सबसे पहले अब एपीए स्टाइल में क्या होता है, सबसे पहले देखो लिखा हुआ है नाम, ये पेपर है किसका। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, ठीक है। देखो, Yes. दिस पेपर इज रिटन बाय मॉरिन सी। मॉरिन जो है दैट इज अ सरनेम, सी इज द फर्स्ट नेम। देन कम्स द ईयर, it is published in year 2011. Okay, then comes the name of the paper. Okay, neuromarketing, the new science of consumer behavior, this is the name of the paper. Then comes in italics comes the name of the journal, ठीक है। नेम ऑफ द जर्नल इज सोसाइटी। ओके, देन कम्स द नंबर, ये नंबर अगर आप देखोगे, सो ये वॉल्यूम नंबर होता है, 48 इज द
वॉल्यूम नंबर। जैसे हर साल, जैसे फॉर एग्जांपल 2014 से कोई पेपर चल रहा है तो उनका हर साल एक वॉल्यूम आ रहा है, और हर वॉल्यूम में भी इश्यूज होते हैं फर्दर। कोई कोई जर्नल जो है वो ट्वाइस अ ईयर पब्लिश करते हैं पेपर्स, कोई क्वार्टरली करते हैं, कोई एनुअली करते हैं। सो देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक है जर्नल। जर्नल जो है वो इट्स लाइक अ मैगजीन, ठीक है। उसके अंदर होते हैं पेपर्स। अब मैगजीन जो है वो बार बार आती रहती है ना, सिमे। सो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स आते हैं। ऐसे जर्नल, एक जर्नल किसके अंडर होते हैं? पब्लिशर्स के अंडर। लाइक वाइली के बहुत सारे जर्नल्स हैं, एल्जेवियर के बहुत सारे जर्नल्स हैं, स्प्रिंजर के बहुत सारे जर्नल्स हैं, दीज सेज के बहुत सारे हैं, दी एमराल्ड के बहुत सारे, दीज आर द टॉप नॉच वंस। ओके। सो इनके अंडर, पब्लिशर के अंडर होता है जर्नल्स, ठीक है। अब जर्नल्स, डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स हैं। कोई टॉप कैटेगरी का है, कोई मिडिल कैटेगरी का है। अब उन जर्नल्स में क्या होते हैं? मल्टीपल आर्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट इशू अगर आया, लेट्स से कोई आया किसी जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च, जेबीआर का। सो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ, ठीक है। तो उसका कोई एक वॉल्यूम होगा, नंबर, वॉल्यूम नंबर होगा। एंड देन द इशू, कि उस साल का वो फर्स्ट है, सेकंड है। अगर क्वार्टरली है तो चार इशू होंगे, एनुअली है तो एक इशू होगा, ठीक है। सो दिस 48 इज द जर्नल वॉल्यूम नंबर। ओके। देन इन द लास्ट इट इज द पेज नंबर, कि उस वॉल्यूम के, उस जर्नल में हम ये वाला पेपर कौन से पेजेस पे है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू इट। लेट्स डू वन मोर थिंग। अनदर पेपर इज, लेट्स से आई टेक, अच्छा यही अगर मैं एमएलए स्टाइल में लिखूं, लेट अस सी एमएलए स्टाइल में कैसे लिखते हैं इसको। नाउ इफ यू सी देयर इज लिटिल डिफरेंस हियर। इसमें लिखा है फर्स्ट ऑथर नेम इटसेल्फ, बट ऑथर का पूरा नाम लिखा है। पहले लास्ट नेम, देन द फर्स्ट नेम। उसमें सिर्फ लास्ट नेम था और फर्स्ट नेम का इनिशियल था। देन कम्स इन इन्वर्टेड कॉमास, देयर कम्स द नेम ऑफ द पेपर। देन इन इटैलिक्स कमिंग द नेम ऑफ द जर्नल। फिर 48.2 इसमें ऐसे लिखा है, वॉल्यूम 48, 2 इज द इशू नंबर। देन कम्स हेयर, यहाँ इसमें ये स्टाइल है कि इसमें ईयर जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। एंड देन कम्स द पेज नंबर। ओके, लेट्स ट्राई। अब ये जो है, दिस वाज इन MLA स्टाइल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू, लेट्स टेक वन मोर पेपर। अच्छा पहले देख लेते हैं शिकागो जो है उसमें, इफ यू सी हेयर, नेम ऐसे लिखा है ना। देन कम्स इन द इन्वर्टेड कॉमर्स द नेम ऑफ द नेम ऑफ द पेपर, देन द नेम ऑफ द जर्नल। सो वॉट एवर इज यू नो द जर्नल इज आस्किंग यू, और योर डिसर्टेशन आपको जिस स्टाइल में लिखनी है, सो यू हैव टू फॉलो दैट स्टाइल। दैट्स ओके। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, demystifying neuromarketing. Here I want to cite this paper in my, कि मैंने इन इस पेपर को का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन लिया है। सो आई एम टेकिंग इन द APA स्टाइल ओनली। सो ये एंड में रेफरेंसेस आती हैं पेपर के, ठीक है। नाउ इफ यू सी द नेम ऑफ द ऑथर, द सरनेम ऑफ द ऑथर इज लिम। W and M are the middle name and the first name and the middle name initials. Then it was published in 2018. The name of the paper is, research paper is Demystifying Neuromarketing. Then in italics, what is this? This is the name of the journal, JBR, Journal of Business Research.
देन 91 इज द वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखा तो दैट मीन्स एनुअल होता होगा, है ना। और 205 से 220 क्या है? दीज आर द पेज नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जर्नल है, ठीक है। सो इस जर्नल के बीच में बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पब्लिशर्स के। सो जिस पेज पे ये वाला आर्टिकल दिया हुआ है वो पेज नंबर लिखा हुआ है, इट इज फ्रॉम 205 टू 220। सिमिलरली अगर मैं यही इसका वो देखूं, सो MLA style if I see, so in MLA style, it will be written like this. Lim is the last name. Wang Mark is the first and middle name. Then the name of the paper, and then journal, and then volume, and then year and page numbers. ठीक है। इसमें ना एक चीज मिसिंग है, DOI। DOI होता है हमारा पेपर का परमानेंट एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे खोलूं कोई भी पेपर, सो इस वाले मेथड से ये DOI होता है, ठीक है। ये हमारा एड्रेस होता है, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारा वो वाला पेपर खुल जाता है, ठीक है। जब हम इस तरह से साइटेशन करते हैं तो इसमें DOI नहीं आता है। एक मेथड ये है कि ये कॉपी करके कर दो, ठीक है। दूसरा मेथड होता है जब हमारे पास टूल्स होते हैं, रेफरेंस टूल्स होते हैं, जोटेरो, एंड नोट, मेंडले, इस तरह के होते हैं। सो हाउ कैन आई यू नो इसको मैंने कॉपी किया DOI का। आई एम शोइंग यू, जोटेरो इज देयर इन माय लैपटॉप। सो ये अभी आपको करना नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल ये जोटेरो है, यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे मैंने कॉपी किया है DOI, ठीक है। यहाँ पे आई एम मेकिंग वन, आई एम क्रिएटिंग वन फोल्डर हेयर, प्रैक्टिस, ठीक है। अब प्रैक्टिस में मेरे को ये पेपर लाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड, यहाँ पे है अगर हमारे कंप्यूटर में ही सेव्ड हैं तो ये वाले ऑप्शंस हैं। यहाँ पे है हम एंटर DOI, ISBNs, PMIDs, ये सब कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन ये सब क्या होते हैं, बट राइट नाउ आई एम डूइंग इट विद द DOI, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये पेपर अपलोड कर दिया, ओके। कैन यू सी दिस पेपर हैज बीन अपलोडेड हियर, ओके। नाउ इफ आई वांट टू साइट दिस, अब रेफरेंस मैनेजर हम कैसे यूज करते हैं? आई विल गो टू जोटेरो, ओके। व्हेन आई विल राइट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखूंगी पहले लिटरेचर रिव्यू में। तो आई एम सेइंग द रीसेंट स्टडी बाय the recent study in neuromarketing talks about the, मैंने पढ़ा नहीं है पेपर क्या है, इट फॉर लेट्स से इट टॉक्स अबाउट द impulsivity, consumer impulsivity. I'm just taking a random example, impulsivity, ठीक है। नाउ अब कौन सा पेपर रिसेंट, नाउ आई हैव टू साइट द सोर्स। कैसे साइट करूंगी? मेरे यहाँ पे एक्सटेंशन है वर्ड में, सो आई विल साइट लाइक दिस, एडिट और ऐड साइटेशन। इट विल टेक मी हेयर, ये मुझसे पूछ रहा है कौन से स्टाइल में, ओके, ठीक है। यहाँ पे दो व्यूज होते हैं, एक कीप द सोर्सेज, यहाँ पे मैं वर्ड डालूंगी अपने आप आ जाएगा। एक होता है क्लासिक व्यू, क्लासिक व्यू में यहाँ पे मेरा ये वाला पेपर था, ठीक है। सो आई विल, कैन यू सी, यहाँ पे लिख दिया इसने कि ये किसने बोली है ये वाली बात, लिम 2018 वाले पेपर में ये बात कही गई है। ऐसे ही हम पैराग्राफ्स बनाते रहते हैं और उसमें साइट करते रहते हैं जिस पेपर से हम जो भी लेते हैं। और एंड में हम इस पे आते हैं, ऊपर टॉप पे देखो इंसर्ट के नीचे देर इज एड और एडिट बिब्लियोग्राफी। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी,
और ये मुझे ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस दे देगा। दिस गॉन। अच्छा, अब जो रेफरेंस आएगी इट विल बी अलोंग विद डीओआई। इसमें डीओआई भी होगा। ये पूरी कंप्लीट वो आएगी जब हम रेफरेंस मैनेजर्स यूज करते हैं। So as of now, you don't have to use it, but what I wanted to tell you here is that you have to cite and how you give the references in different styles. Okay, so this is it from my side. अगर ये actually my Zotero is quite heavy. It has multiple papers in it. Anyways, okay. One more way I wanted to show you was I'll just open this paper. Hmm, okay. उसमें आ जाता है I have just quit this as of now. ओके, देर इज वन मोर नॉर्मल एक वर्ड में भी हमारे पास फैसिलिटी होती है। ये ऊपर अगर आप देखो, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन रेफरेंसेस। यहाँ पे रेफरेंसेस में आएगा इंसर्ट साइटेशन। यू कैन राइट इट। ओके, आप ऑथर का नाम लिखिए, टाइटल लिखिए, सिटी, पब्लिशर, ईयर, अभी जैसे हमने वो किया है। ठीक है, एंड देन हियर इट कम्स द just 2 more minutes. Just 2 more minutes. Then comes the bibliography also. Okay, कि किस उसमें चाहिए। So here from here also we can, जब आप इस इन साइटेशंस डालोगे तो उसके बाद बिब्लियोग्राफी के ऑप्शंस भी दिखाएगा। ठीक है, एंड हियर यू हैव द styles also, APA, Chicago, and all these styles. Okay, so you can देखो यहाँ पे सब आ रहा है, टाइटल, सिटी, स्टेट, रीजन, पब्लिशर, ईयर। सो आप जैसे ही लिखोगे वो आपको सारा अपने आप उस स्टाइल में बना के दे देगा। ओके, एज ऑफ नाउ इसमें नहीं आ रहा है तो हम DOI जो है वो अपने आप भी डाल सकते हैं। आई जस्ट शो यू वन एग्जाम्पल एंड देन वी आर वाइंडिंग अप। आई शो यू एनी एग्जाम्पल। लाइक, कैन यू सी दिस इज द पेपर। ये APA स्टाइल में लिखी हुई है सारी। लास्ट में जो है पेजेस के बाद जो DOI लिखा था, यू कैन सिंपली, इफ इट इज नॉट कमिंग डायरेक्टली, यू कैन सिंपली, क्योंकि अभी आप रेफरेंस मैनेजर्स तो नहीं यूज करते हो, सो यू कैन सिंपली गिव दिस DOI। DOI मीन्स एड्रेस ऑफ द पेपर। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। Any questions if you have? Hmm. Any questions?